We'll be dealing with verse 4 of Isha Upanishad, Ishavasya Upanishad. So, just to refresh your memory, verse 1 is the Ishavasya principle. Ishavasya principle, then no karma bandhan is accruing. Verse 3, if we do not live in harmony with Ishavasya principle, then worst happens. Now, verse 4 and verse 5, they describe that Ishwar kaun hai, who is Ishwar, and how it is so difficult to understand him. So let us go through verse 4 today. अनेजद एकम मनासो जावियो नैना देवा अपनुवन पूर्वम अर्सत तद्धवातो न्यान अत्येति तिष्ठत तस्मिन् अपो मतरिस्वा दधाति. It translates like this: although fixed in his abode. That it's talking about the Supreme Personality of God. Although fixed in his abode, the personality of Godhead is swifter than the mind and can overcome all others running. The powerful demigods, Devta, the powerful demigods cannot approach him. Although in one place, he controls those who supply the air and rain. He surpasses all in excellence. So they are talking of 4 vibhutis, so to say, or qualities. Glories, no? One is he is swifter than the mind, because we know mind is very swift. मन की गति जो है सबसे तेज मानी जाती. He is swifter than the mind and can overcome all running. जो भी कोई चीज भाग रही है उससे आगे. He is unapproachable by the demigods, Devata. Although he is sitting in one place, but he controls everything. When he is saying control rain and the air, he is controlling everything, sitting in one place. And he surpasses all in excellence. So they are talking of 4 different things in this. एक बार फिर से जरा रिपीट करो. He is swifter than mind. He is, Faster although than fixed in his anything. abode, the personality of Godhead is swifter than the mind and can overcome all others running. The powerful demigods cannot approach him. Although in one place, he controls those who supply the air and rain. He surpasses all in excellence. The main point is what we call God and what we call personality of Godhead. He is extremely, extremely difficult to understand. वो समझ में आने वाली चीज नहीं है, वो अपने में अनुभूत करने वाली ही चीज है. इसीलिए तो अचिंत्य जो कहते हैं उसका मतलब यही है ना. अचिंत्य मीन्स दैट, अचिंत्य भेद अभेद का है ना इसमें. अचिंत्य हम्म. भेद अभेद, दैट इज द फिलोसफी. अचिंत्य भेद अभेद, अचिंत्य मीन्स जो सोच में ना आ सके, जो सोच से परे है. माइंड से ऊपर है जो ना. हाँ, क्योंकि इट इज सोचने की शक्ति बियॉन्ड माइंड में माइंड. ही है. इट इज बियॉन्ड माइंड, सोच से परे.
extremely difficult to understand, and it reconciles the concept of Advait and Dvait. Advait is oneness, and Dvait is the difference between one thing and the other. It kind of unifies Dvait and Advait into one single unified truth, which we call the absolute truth. Right? अब इसमें what we can try to understand is like this, that Bhagwan is present everywhere because he has three basic energies. The first energy is what we call the internal energy or internal potency or antarang shakti, which is basically the spiritual sky. The spiritual sky is the antarang shakti of Bhagwan. Then there is the sansar, yeah, material world. That is the external potency of Bhagwan. That is manifestation of his external potency. And then there is third one, which is marginal potency or tatastha shakti. Marginal potency और तटस्थ शक्ति. तो जो कुछ सप्लायर्स ऑफ रेन एयर लाइट यानी कि जिनको हम देवता बोलते हैं, दे आर ऑल विद इन दिस. इट ऑल्सो इंक्लूड्स human beings. So whether it is human being or it is devta, they are all part of Bhagwan's तटस्थ और marginal potency. उसके जो ऊपर है, that is the spiritual sky, that is his internal potency, right? और जो हमें संसार दिख पड़ रहा है, that is the external potency. So these three, so because these are all his shaktis, his energies, so through these he is present everywhere. Through these three. या ये हम इसको इस तरह से भी तो एक्सप्रेस कर सकते हैं ना कि whatever we experience in this external world is the same thing. We are experiencing the same Brahman, Yes. no matter where we are at any given point in time. As a You human can being, say that way. I think you can say interacting that. with We are anybody else. actually we are a tiny part of Bhagwan. You can say it like this. Exactly. We are a tiny part of Bhagwan, but our quality is same as him in a way. But our strength or our quantity is much less. Limited, yeah, very limited. So you can consider it like this, that suppose there is a fire and you can see some patangas, some sparks. So if you check the quality of the spark and the quality of the fire, it will be same. But the spark is much less in potency than the fire itself. Correct. So that's the way to understand it. Yeah. हर्ष, एक क्वेश्चन था कि ultimately when we from a Kundalini marg, when we reach to the last final stage, not last, final stage of Sahasrara, then all the powers of भगवान जो बताया जा रहा है, then we become that. I mean, we have now realized our true self. उसी में मर्ज हो गए जाके ना. वो तो ट्रू सेल्फ तो हमेशा प्रेजेंट थी, but because of the veil of ignorance at certain different levels, right, it couldn't reach that. ये जो है ना, there are so many concepts are there.
let us not merge here unnecessary. Let us try to understand what is existing in this Upanishad. And then you can think, correlate anything. अभी करके आप इसको confuse करेंगे. Let us understand ये क्या कह रहा है. I mean, my suggestion is because by this, you are इसका जो मीनिंग होगा उसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं या उसको कंफ्यूज कर रहे हैं. इतनी हमारी इंटेलिजेंस नहीं बढ़ी है कि हम सब कुछ समझ गए. देयर समथिंग, सम थिंकिंग समवेयर, सम थिंकिंग समवेयर. उपनिषद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है. लेट अस नॉट कंबाइन एंड मेक इट समथिंग विच इज खिचड़ी, विच इज नॉट क्लियर वेदर उपनिषद पढ़ रहे हैं हम या वही पुरानी चीजें हम कुछ नहीं उन्हीं को रिपीट कर रहे हैं. But yes, what you are saying, Ram Vinod, is correct. But what Prabhat is saying, I will only say one thing. My feeling is that whatever we are reading as a Shastra, they are all connected. They are all connected. There is a total linkage between them. But yes, you may not be able to immediately link something. A lot of study or thinking or whatever meditation is required to link one or the other. But yes, they are all linked. They are all linked. Right. Probably a person who has studied all these aspects, probably he may be able to correlate. I fully agree. Maybe that I am not a मैंने उपनिषद पहली बार सुन रहा हूँ, तो उसको समझने की मेरा अभी जो है ना, मेरा मन ये है कि उस उपनिषद में क्या कहा गया उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं. We are going to that. Right, because yeah, there may be some people, learned people, who may be able to correlate everything. That is possible. But now, if we talk about what you call Kundalini and all that, no, that is altogether a different aspect. I don't think it is the same thing here. What he's talked just now. Right now he is talking that भगवान के क्या रूप हो सकते हैं. एक तो बियॉन्ड ओवर है, एक सांसारिक है, कुछ मार्जिन. ये तीन बातें अभी उसने कही. तो इन तीन बातों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, दैट्स परफेक्ट. दैट इज व्हाट चेतना आल्सो. ऐसे ही समझाया गया हमको कि कॉन्शियसनेस परवेडिंग एवरीवेयर. So we are all part of that Bhagwan only. Sure. I'm sorry प्रभात जी. हाँ, मेरी समझ में ये मतलब क्या हो रहा है ना कि अभी ये करने से इसका जो लिंक है वो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा वो छूट जाएगा. नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. मैं आपकी बात को अपने द्वारा ही समझ रहा हूँ, तो मैं आपको अपना ही रूप समझ रहा हूँ. ठीक. चलो, ओके सर. Let's move forward. Let's move forward. That is correct. So it says he's fixed but travels faster than mind and cannot be caught by anybody running along with him, cannot be caught by the devatas, So Bhagwan is sitting in his Golok Dham, one place. His residence is Golok Dham, which is the highest spiritual place. There is nothing beyond that as per the Shastra. Golok Dham is Bhagwan's resting place. And that is where he is. But through his inconceivable potencies, भगवान की इतनी potencies हैं, इतनी शक्तियां हैं, इतनी energies हैं, through them he can reach anywhere without a blink of an eye. So nobody can actually run as fast as he can run, kind of. Right? He can divide himself in innumerable number of people with the blink of an eye. That everybody feels, oh, he's with me or he's with me. जैसे वो आता है ना, आपको याद होगा, पढ़ा जरूर होगा कि जब भगवान रास रचाते थे तो हर एक गोपी को ये लगता था कि भगवान उन्हीं के साथ नाच रहे. एग्जैक्टली, वेरी ट्रू. हर एक को यही महसूस होता था कि इंडिविजुअल उसको इंपॉर्टेंस मिल रही है. सो ही वॉज प्रेजेंट विद ईच वन एट द सेम टाइम. अब जो हमारे योगी वगैरह होते हैं, हर्ष तो कई बार इस बात को बता चुका है कि भाई उनकी इतनी पावर तो होती है कि वो एक ही टाइम में दो जगह प्रेजेंट हो सकते हैं. यहाँ तक तो हमने मतलब यहाँ के लोगों मटेरियल ह्यूमंस के बारे में सुना ही है कि इतनी यौगिक पावर तो है कि भाई दो जगह. अब पता नहीं दो जगह, तीन जगह, 10 जगह भी हो सकते हैं या नहीं, वो लोग मुझे नहीं पता. पर भगवान तो कितनी भी जगह एक ही टाइम में हो सकते हैं. सो दैट इज हिज पावर, हिज इनकंसीवेबल पोटेंशियल. So he can actually reach every part
of his creative energy. Spiritual, internal, जिसको internal कह रहे हैं, internal, middle, which is तटस्थ, and external. ये सारी जहां जहां उनकी एनर्जी है वहां वहां वो in the blink of a eye he is there. So he is very fast. That's what he is trying to say. And वो कह रहे हैं कि he is sitting in one place, but he is controlling the givers of rain and fire. So it is like this, that if there is a fire, see, if there is a fire, even from a distance, you can see the light and you can feel the heat. Fire has two potencies. One is light. Wherever there is a fire, you can see light. Second is heat. Both you can feel even if you are not in the middle of the fire. You can feel it from a distance. Okay, may not feel the heat from a long distance, but light you can see even from a very long distance. Sun is so far, but you can see the light. You can even see the fire which is burning inside the sun. So, like that. So, his potencies are like that. That even while he is sitting in one place, he is able to project through his energies everything. So, he is able to control those who are providers, demigods like who are providers of rain and air. क्योंकि यही सबसे बड़े देवता माने जाते हैं, सूर्य, वायु और वर्षा हाँ, क्योंकि लाइफ को सस्टेन करने के लिए तो यही माने जाते हैं ना. सो दैट्स व्हाई दीज आर मेंशन्ड. Now the point comes that we cannot conceive such an Bhagwan, such an Ishwar with our strength alone. We can only understand or try to have an anubhav of him, an experience of him through our sincere spiritual practice, which is easily termed as, in normal parlance, we call it bhakti. That is our sincere spiritual practice. Right? So, it's like swimming, for example, or biking. This is swimming hai, biking hai. These are things which you cannot understand or which you cannot learn by reading a book. Can you learn swimming by reading a book? Or can you ride a bicycle just by reading a book? How to ride it? No. You have to dive into it, learn haath pair marna, and then gradually it comes to you. Same way is with bike. First time you ride it, you fall. And then thoda bahut phir experience ke saath, you start getting the hang of it. So it's like that only. So basically, हमें किसी भी शास्त्र को पढ़ना भी चाहिए और उसकी हमें प्रैक्टिस भी करनी चाहिए. We can begin by reading it and then try to practice it so that उसका अनुभव हमें हो. अनुभव is the main thing. इसको हमने कई बार हर्ष से भी सुना है कि जब तक हम इंटरनलाइज नहीं करते किसी चीज को, अनुभव नहीं करते, तब तक हम उसको ग्रहण भी नहीं कर पाते, ग्रास्प भी नहीं कर पाते और उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते. बट रीडिंग इज स्टिल द फर्स्ट स्टेप, और लिसनिंग टू आचार्य और ए गुरु इज द फर्स्ट स्टेप, देन उसको प्रैक्टिस में लाने का. सो दैट इज व्हाट इज. एंड no need actually to know all the details. In the beginning, it is good to know the essence.
Because you see, all Shastras, all Gurus, all Acharyas, they give you a full commentary of the things, but they also give you a gist of the thing. Yeah. And in the beginning, it is good enough if we get the gist of the thing. We develop our faith as per the gist of the thing, Correct. and then go ahead. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक लीगल लाइफ लीड करते हैं. We are all leading a legal life. Legal life means which is not illegal. We abide by the rules and regulations. Legal life. But do we know the complete law? We don't. We don't know we have not studied big law books or every law book by which we are abiding. No. But peripherally, we know what is the law or what is the essence or what is the drift of the law. एक्चुअली हम लोग वो फॉलो करते हैं ना, लॉ ऑफ धर्मा Accordingly, धर्म. हाँ, चाहे वो लॉ ऑफ द लैंड हो, वी फॉलो लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है. बट डू वी नो इन कंप्लीट इन टोटलिटी द लॉ ऑफ द लैंड? नो. वी नो मे बी जस्ट ए फ्यू लाइन्स ऑफ इट और मे बी जस्ट ए जिस्ट ऑफ इट कि भैया ये, करेक्ट करेक्ट. वी फॉलो दैट. So it is the same way with Shastra or spiritual practices also, that it can always start in a small way with a faith on the essence or the gist of it. And then as we grow into it, we ourselves will start realizing it, relishing it, realizing it, internalizing it, experiencing it. So that is it. अब पॉइंट इसमें ये आता है कि भाई हाउ टू बी ए good bhakt, let us say. We want to start spiritual practice, but how to be a good spiritual person? So it's no rocket science in that. Basically, the first requirement is to be a good person. First requirement is to be a good person. Good person means no bad habits. We all know what is a bad habit. Yeah. So the first and foremost requirement is a good person. And then the Shastra is saying 5 major requirements, out of which you can pick one. What are those 5 major requirements? First is sadhu sang. Sadhu sang means सज्जन व्यक्तियों का साथ, और दो साथ उन लोगों का जो स्पिरिचुअली ओरिएंटेड हो. साधु का संग मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो वो खड़ताल बजाते हुए जा रहे हैं भगवा पहन के, उन्हीं का साथ करना है. बट दोज विद स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड और पीपल विद गुड कंडक्ट, दे आर साधुस. सो साधु संग इज वन वे. देन नाम का जपना, भगवान के नाम का जप, दैट इज सेकेंड वे. देन भगवान के बारे में सुनना, श्रवण, चाहे वो कथा हो या कोई कहानी हो या कुछ भी उनकी पास टाइम हो, जो भी है, लीला हो, उसके बारे में सुनना. चौथी है भगवान की मूर्ति की सेवा विद लव. भगवान की मूर्ति की सेवा विद लव. और पांचवी है तीर्थ में रहना. तीर्थ लाइक वृंदावन, उसमें रहना. उसमें रहने का मतलब भी यही है कि यू विल बी लिविंग ए pious life, you will be coming across lot of spiritual people, the atmosphere will be very positive there. So out of these 5, it is recommended. The first requirement is be a good person. Second is, out of these 5, choose at least one and follow it. So that is the way to go about entering
or trying to swim into spiritual domain. So this is what verse 4 is about. I think I'm done. So if there any question, we can try to discuss तो it. मकरंद भाई, इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ पहला वाला जो है, दैट इज बी ए गुड पर्सन, हाँ, that is the only thing whole life we have been doing. We always try to make that attempt. right. See, when I know that it is a bad thing, I would like to not to do that. When there is something good habit, I try to acquire it. So हम सिर्फ गुड पर्सन बनने की कोशिश करते रहते हैं. दैट इज वन पार्ट. सेकेंड थिंग ऑफकोर्स इज ए भगवान को याद करना, भगवान का नाम सेवा जपना, करना, एक्चुअली सेवा सिर्फ सेवा. याद करना नहीं, इसके हिसाब से भगवान की सेवा मीन्स ए रेगुलर, कहते दिया बाती आरती या थोड़ी सी पूजा, हाँ सेवा, हाँ साफ सफाई, वहां पे थोड़ा अर्चना पूजा, थोड़ा भगवान को अर्घ देना या प्रसाद लगाना, दैट या इज ऑल एक पार्ट ऑफ सेवा। हाँ. नो मकन भाई, इसमें मैंने कई जगहों पे ऐसा पढ़ा है कि अ, भगवान को क्या खाना खिलाओगे आप, भगवान को क्या चढ़ाओगे आप, भगवान का ही तो सब कुछ है. ये इस तरह का एक ये है, आप सही कह रहे हैं। क्या होता है, मैंने देखा, जैसे बहुत सी जगह मैंने देखा है, एक एग्जाम्पल, एक पैरेलल खींच रहा हूं हम्म, और मुझे अजीब सा भी बहुत लगता है। 10 पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स ऑफ गीता हम्म, है, वो लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अमूमन आप देखोगे कि, क्योंकि आप लोग एक बार गीता तो पढ़ चुके सभी, हम्म, तो आप ये देखोगे कि उसका एक भी पॉइंट गीता के उससे पूरे 18 चैप्टर के अंदर कवर नहीं है, पर वो सब हम्म, अच्छे पॉइंट होते हैं अपने आप में। पॉइंट कोई गलत नहीं होता उनमें। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल वो लिखेगा सदा सच बोलो, ठीक है, गीता में भगवान ने एक बार भी, जो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 18 तक, अपने मुंह से ये नहीं बोले ये बात, सदा सच बोलो, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने, पर घुमा के आपने कुछ लिख दिया। तो एक तो इस तरीके की होती है लोगों की। दूसरी ये है कि मैं बताऊं, जब हम थोड़े से एथिस्टिक होते हैं ना, या जब हमारे अंदर आसुरी गुण ज्यादा होते हैं, तो हम ना कुछ ऑलरेडी अपनी थ्योरी बना लेते हैं। या अपनी दैट्स थ्योरी, करेक्ट. ये अपनी और थ्योरी है। हर आदमी तो अपनी थ्योरी बनाता है बेस्ड ऑन करेक्ट, इनपुट्स जितने उसे मिले हैं करेक्ट, सारी लाइफ में. करेक्ट, 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 यू आर राइट। लेकिन जो शास्त्र है वो ये कहता है कि किसी भी सिचुएशन में शास्त्र ही प्रमाण है। हम्म, शास्त्र ही प्रमाण है, और कुछ प्रमाण कुछ नहीं है। और मान लो आप कुछ भी, आप ए मान सकते हो, आप बी मान सकते हो, सी मान सकते हो, अकॉर्डिंग टू जैसा भी आपका मेंटल मेकअप है, जैसे आपके सरकमस्टांस हैं, जैसी आपकी कंपनी है, जिन जैसे लोगों में आप मूव करते हो, जैसी चीजें आप देखते हो, तो उसके हिसाब से आप अपनी एक ओपिनियन तो फॉर्म कर सकते हो। लेकिन अगर प्रमाण देखना है तो शास्त्र के पास जाना पड़ेगा। जो शास्त्र कह रहा है वही प्रमाण है, प्रमाण वही है। जो शास्त्र में नहीं कहा गया है वो प्रमाण नहीं है, वो एक ओपिनियन हो सकती है। उसमें जेमिनी उपनिषद में जेमिनी ने यही कहा है कि मतलब वो इस बात के पर हो रहे थे कि जो प्रवचन होते हैं या जो आपस में डिस्कशन हो रहे हैं, तो उसमें यही उन्होंने कहा है जो तुम कह रहे हो कि भाई अगर वेद में लिखा दिखा दोगे, बता दोगे ये वो मंत्र है, तब माना जाएगा। अगर आपस में डिस्कशन होते होते भाई क्या बिगेस्ट प्रूफ है, बिगेस्ट प्रूफ इज द ओनली, जैसे तुमने कहा, करेक्ट, शास्त्र बेसिक। किसी भी डिस्प्यूट में शास्त्र ही प्रमाण है। because that is the supreme for us. I mean, that is the दैट इज द main. सुप्रीम Uh, वर्ड। yeah, और yeah, सेकंड, दूसरी चीज ये है कि किसी भी परसुएंस में ना, जो पहला स्टेप होता है वो होती है श्रद्धा। श्रद्धा, yeah. फेथ। तो अगर आप शुरू ही फेथलेसनेस से करेंगे किसी चीज को, तो आप कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे किसी भी तरीके की। Correct, आपको श्रद्धा तो correct, रख के चलना ही पड़ेगा। यू हैव टू एज्यूम, लेट अस एज्यूम ए इज इक्वल टू सो मच, एंड देन स्टार्ट। correct. या तो यो भगवान ने गीता में ये कहा है ना कि
श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जब अर्जुन हफ्ते को के बता रहे थे ना, करेक्ट, श्रद्धा बहुत जरूरी। जिसको श्रद्धा नहीं है उसको ज्ञान नहीं मिलेगा। डाउटिंग टॉमसेस विल नॉट टेक यू, जो कहते हैं ना, डाउट्स आर द बहुत बढ़िया बिगेस्ट है विलन। मकरंद, बहुत अच्छी तरह समझा रहे हो, बहुत बढ़िया। So, Makaranji, I mean, they are all good things. यस। बट मुझे मतलब मैं इसलिए पहले भी पूछ चुका हूँ, नहीं नहीं जस्ट नहीं, फॉर always। आई एम आस्किंग अगेन दैट पॉइंट। मेरी समझ में ये नहीं आता कि वी ऑल क्रिएटेड बाय गॉड, God is everywhere, we are all God, that so many different things are there, we accept everything because everybody is trying to uh, understand God in his own way, and that's why हर आदमी की so many different aspects are there. राइट। बट मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आता, गॉड हु हैज क्रिएटेड अस, हु शुड बी इंटरेस्टेड दैट वी शुड डू ए गुड जॉब, गुड पर्सन होने चाहिए, इट्स ऑल एक्सपेक्टेड, बट व्हाई गॉड विल बी इंटरेस्टेड कि सुबह शाम हम सिर्फ भगवान की पूजा करें, भगवान को ही प्रेज करें, सो मच इनकी जय, मतलब ये मेरे लिए अभी भी ये बात समझ में नहीं आती कि ये कैसे भगवान की तरफ को जा रहा है, भगवान क्यों इसमें इंटरेस्टेड है। भगवान ने हमें क्रिएट किया है फॉर सर्टेन पर्पस, वी हैव टू डू दैट पर्पस, बट व्हाई भगवान सपोज, बिकॉज वी आर ऑल लुकिंग दिस विद ए ह्यूमन थिंकिंग, हमारी थिंकिंग तो ह्यूमन थिंकिंग ही है, वी कैन नॉट बिकम सुपर जस्ट लाइक दैट। नो, ये हमारी थिंकिंग है कि अगर मेरे साथ चार लोग काम कर रहे हैं और चारों अच्छा काम करें और चारों मेरे गुण गाते रहें तो मैं बहुत खुश रहूंगा। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, मुझे नहीं लगता कि भगवान की टेंडेंसी ऐसी होनी चाहिए। मैं जब भगवान के आगे हाथ जोड़ता हूँ तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि नहीं, भगवान की ऐसी टेंडेंसी नहीं हो सकती कि मैं सुबह शाम यही करूँ तो मैं ग्रेट बन जाऊंगा, ऐसा मेरे मन में बार बार आता है। क्वेश्चन बहुत ही नेचुरल है, और मुझे नहीं मालूम कि मैं इसका पूरा आंसर दे सकता हूँ या नहीं, पर मैं थोड़ी सी कोशिश करूंगा, एंड देन आई विल आस्क हर्ष टू एक्चुअली गिव हिज फाइनल ओपिनियन ऑन दिस। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो इस तरीके से है कि भगवान ने जब मनुष्यता का निर्माण किया है अलग से, तो इट वाज समथिंग लाइक, जो शास्त्र में कहा है कि एको हम बहुश्यामी, एको हम बहुश्यामी, कि लेट मी बिकम फ्रॉम वन टू मैनी, एको हम बहुश्यामी। ठीक है, दिस इज हाउ द लिविंग एंटिटीज वर क्रिएटेड। ठीक है, बट द मोमेंट दे वर काइंड ऑफ, लेट अस से, प्लेस्ड इन दिस जगत, इन संसार, तो मटेरियल जो उसका वो था, भगवान ने ही मटेरियल भी क्रिएट किया फॉर देम टू लिव प्रॉपरली। कहते हैं ना कि पहले पहले हमारे कंजम्पशन की चीज क्रिएट हुई, फिर हम क्रिएट हुए, so that we have no problem in sustenance. Suppose humanity was created but had nothing to eat, could not sustain, na? So first things were created which were edible and which were uh, keeping the humanity going on, or living beings going on. So living being created, right? But संसर्ग जो हुआ लिविंग बीइंग का मटेरियल चीजों के साथ, तो वो अपना जो स्टार्टिंग पॉइंट था उससे थोड़ा सा अलग अलग लेवल पे डिविएट होता चला गया, कुछ ज्यादा कुछ कम, कुछ ये कुछ कम। सो भगवान ने गीता में गीता में उनका सबसे, चूंकि खुद बोला है गीता में, तो भगवान ने गीता में यही कहा है कि भैया फ्री विल तो तुम्हारे पास पूरी है, तुम्हें हर एक को मैंने फ्री विल दी है। फ्री विल नाम की चीज है कि भाई तुम जैसे चाहो वैसे रह सकते हो, लेकिन जैसे एक फादर एक बच्चे को कहता है भैया तू ये भी कर सकता है, तू ये भी कर सकता है, इसका ये रिजल्ट है, इसका ये रिजल्ट है, और मेरा मानना ऐसा है कि तू इस रास्ते चल, आगे तेरी इच्छा। ये इस तरीके से है। तो ये जो सारा हम बात कर रहे हैं, ये जो हमारे शास्त्र में कहा गया है, ये हमारे आचार्यों ने, मनीषियों ने कहा है कि भैया जितना तुम्हें एक नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजारने के लिए जरूरत है,
वो तुम्हें मिल जाएगा। उसके लिए बहुत ज्यादा हाथ पैर उल्टे सीधे काम करने की जरूरत ही नहीं है। तुम अपने को फोकस रखो जहां से आए हो उसी के ऊपर, और वो तुम्हारा भरण पोषण की जिम्मेदारी खुद लेता है भगवान। बस वो कहा है ना, वो योगक्षेम वहाम्य हम, योगक्षेम वहाम्य हम 9 चैप्टर में बोला ना भगवान ने कि तुम अगर इस तरीके से चलते रहोगे, यानी कि मुझे हमेशा फोकस में रख के चलते रहोगे जहां से तुम आए हो, और फ्री विल का इस्तेमाल करोगे बट इन ए लिमिटेड वे, इन ए गुड वे, तो तुम्हारे जो भी तुम्हारे सस्टेनेंस के लिए चीजें हैं उनके प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। उसकी तुम्हें चिंता करने की जरूरत। तो मेरा सम एंड सब्सटेंस अंडरस्टैंडिंग का इतना ही है। फ्री विल है हमारे पास, कंप्लीट फ्री विल है। और साथ में एक चीज वो और ऐड कर देते हैं कि चूंकि कर्म के सिद्धांत के हिसाब से जितनी फ्री विल का इस्तेमाल करोगे या जैसे भी इस्तेमाल करोगे, उसी हिसाब से तुम्हारे रिजल्ट और उसके पाप पुण्य के जो भी फल हैं वो आते रहेंगे, आते और रहेंगे। उनको भोगने के लिए तुम जन्म मरण के चक्कर से चलते ही रहोगे। सो वन वे इज कि यू ओनली से कि भैया ठीक है, मैं तो अच्छे कर्म करूंगा, लेट मी डाई एंड कम बैक एज ए बेटर पर्सन, यू नो, और मैं आई अगेन गेट ए ह्यूमन बर्थ। आई डोंट वांट टू स्टॉप दिस बर्थ एंड लाइफ डेथ लाइफ फॉरएवर। Yeah, मैं साइकिल तो ये but आता जाता रहूंगा, अच्छे काम करूंगा, correct, आता जाता रहूंगा। ये correct. एक अप्रोच But होती है, हो सकती है ये अप्रोच। but ये सब सुनने के बाद द बेस्ट थिंग इज कि आप आ, सिर्फ सुबह शाम भगवान की पूजा करो। आप हमेशा ओके, पूजा ना भी करो, लेकिन बैक ऑफ द नहीं नहीं माइंड वो हमेशा वो याद रखो। ना इसका जवाब मैं थोड़ा सा, जो राम विनोद जी मैं ने, अशोक जी थोड़ा ये बात खत्म कर दूं जस्ट कि सुबह शाम हाँ। भगवान की पूजा करो। हम्म, और जबकि सिर्फ पूजा, बिकॉज कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म नहीं करोगे तो द जो नेचुरल साइकिल है इट कैन नॉट कंप्लीट, यू कैन भगवान नॉट ने कहा ही नहीं ग्रो। कि कर्म मत करो। हाँ, हाँ आपका शरीर ही काम नहीं करेगा, तो वो हाँ, करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या करते हैं जो संत लोग हैं, या जो मैं उन संतों की बात कर रहा हूँ जो हमारे नॉर्मली दिमाग में आता है कि हाँ, मतलब सुबह शाम पूजा पाठ, कहीं एक जगह बैठे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, और लेकिन उनको भी मतलब शरीर चलाने के लिए खाना चाहिए, और उस खाने के लिए वो भिक्षा के लिए जाएंगे। भिक्षा वहीं से मिलेगी जहां कोई कमा रहा होगा, या जहां कोई बना रहा होगा, या जहां कोई हाँ, हाँ, अन्न हाँ, प्रोड्यूस कर रहा होगा, वहीं से मिल सकती है हाँ, ना। इट बिल्कुल कैन नॉट बिल्कुल गेट बिल्कुल क्रिएटेड बिल्कुल। जस्ट लाइक दैट, राइट। हाँ। तो ये मुझे बड़ा अजीब लगता है कि दिस इज नॉट कंप्लीट। मेरे बहुत जगह ये इंप्रेशन मिलता है सिर्फ भगवान का नाम लो, सब तुम्हारी चीजें खत्म, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बिना खाए वो संत नहीं रह पाएगा, तो उसके लिए भिक्षा चाहिए। और भिक्षा कहाँ से, भिक्षा इटसेल्फ इज समथिंग कि आप अपने को दयनीय कंडीशन में डाल रहे हो, किसी से कुछ मांग रहे हो। हाँ, उसकी जगह ऐसा होना चाहिए कि मैं खुद कुछ कर सकूं। आपको बहुत कुछ हम कर ही नहीं सकते, लाइक अन्न उपलाने के लिए पेड़ चाहिए ही चाहिए, करेक्ट। हमको पता है भिक्षा का कंसेप्ट क्या है, एक सेकंड को, क्योंकि भिक्षा हाँ की बात कर जरा रहे हो। मैं 1 मिनट, मकरंद हाँ थोड़ा सा 1 मिनट हाँ, मुझे दे। हाँ, 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 ये जो सगुण वाले हैं जिनको तुम कह रहे हो कि तपस्या करो और सुबह को गाओ, और वो, मैं इसका थोड़ा सा नेगेटिव जवाब दे रहा हूं। हम्म, उस टाइम वो आदमी वो ये नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है भाई साहब? कम से कम गाली तो नहीं दे रहा बैठा हुआ किसी को। हम्म, राम विनोद जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, या अगर मैं वहां, मैं पूजा करता हूँ सुबह को या शाम को, या आरती करता हूँ, उस टाइम पे मैं अगर वो नहीं करता तो मैं कहीं बैठा हुआ गाली दे रहा होता या ताश खेल रहा होता। नॉट एसेंशियल, नॉट नो, जरूरी। और मैं कुछ और भी कर सकता था। नो, या देर इज एम्प्टी थिंग्स बट ओनली एटलीस्ट वन थिंग इज देयर, मैं गाली नहीं दे रहा था किसी को। बट दैट इज नॉट सफिशिएंट नो, फॉर ये गॉड टू। डिसीजन जो 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 आस्तिक, जो जो आज के इंग्लिश पढ़े हुए लोग हैं ना, उन्होंने सबसे पहले यही आर्गुमेंट दिखाया है, अजी मैं तो ये वो कुछ नहीं करता भाई, जो ये नहीं करता आरती या और दोज थिंग्स, वो जाके बाहर दान भी नहीं देता। उससे जब दान की बात करते हो
तो वो खटाक से मना कर देगा, जी दान देना की जरूरत थोड़ी है, उसको अपने आप जाके करना चाहिए, मैं भिक्षा भी नहीं दूंगा। यही है बाद में बात। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम करो पूजा, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, बट हमारे जो निर्गुण वाले हैं थोड़े से, जो उस साइड के हैं, वो उनका आर्गुमेंट ये हो रहा है, जी तुम पत्थर की वो कर रहे हो, है तुम फलाने की कर रहे हो। अरे तुम्हारे पिताजी का फोटो है, मैं उसमें लात मारने लगूं, तुम्हें अच्छा लगेगा? ऐसी वो मूर्ति जो बनाई है, किसी ने अपनी श्रद्धा से बनाई है, श्रद्धा से बनाई है, या पैसे कमाने के लिए बनाई है? तुम्हें वॉशरूम जाना है तो मंदिर में थोड़ी जाओगे, टॉयलेट पे जाओगे भाई। ये जो आर्गुमेंट है ना कि भाई वो ये कर रहा था, आरती कर रहा था, देखो साला बेवकूफ सा है, कम से कम वो ना किसी को साला कह रहा था ना बेवकूफ कह रहा था। That's what it is negative point of those who always I withdraw my those consent. always say that thing, hey I am also as intelligent, जो इस चीज को कहते हैं ना कि वो कर, अरे कम से कम उस टाइम, जैसे आप और हम बैठे हैं, आप और हम इस मीटिंग को नहीं कर रहे होते, तो कम से कम हम कुछ अच्छा काम करने की तो कोशिश कर ही रहे हैं। वो अच्छा बिल्कुल। किसी को लगता है या नहीं ये लगता, नहीं, ये जैसे हम साधु संग डिपेंडेंट कर रहे हैं अशोक, हम साधु संग ही कर रहे हैं ये। है। नो आई नो, साधु जस्ट संग, यहाँ व्हाट जैसे एल्स बैठ के साधु संग, आई डेढ़ डोंट घंटा अंडरस्टैंड, 2 घंटा साधु लगाते हैं, संग। हम उसकी जगह बैठ के बाहर खेल भी सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। तो ये भी कहते दिस इज कोई कैसे हैं। कर रहा है, ये आपका आलोचना का क्षेत्र नहीं होना चाहिए। उनको कि भाई मैं, तुम नहीं करना चाहते पूजा, दैट्स फाइन, नहीं, ये That क्वेश्चन is वो fine. नहीं था। People क्वेश्चन है वो बट ही नहीं जो था कि कर रहे हैं चाहते क्या है। फाइन देखो है। क्वेश्चन वो नहीं है चाहते क्या, इट इज नॉट द क्वेश्चन। चाहने के लिए सबसे आई नो, आसान आई तरीका हैव है हर्ड सुबह दिस शाम पूजा क्वेश्चन करना। daily, every day. I have हम्म, heard this question. I हम्म, have been myself also that. I'm not saying that I have changed, but this is a nonsense question. कि that कि भाई वो ये कर रहा है तो ये तो अच्छा नहीं लगता, भाई जो तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो कर लो, दैट्स ऑल। हाँ। बट तुम्हें ये अधिकार नहीं है कि वो कर रहा है तो ये गलत कर रहा है। करेक्ट। हम तो वो यहाँ थोड़ा किसी के Let us hear क्रिटिसाइज Harsh. करने के Let लिए us नहीं, hear, या लेट्स गो, hear करेक्ट। one of the दैट्स इट, जस्ट स्मॉल थिंग। better. Harsh, you please दो intervene दो now. चार शब्द में भी डाल दूं भाई। हाँ नो बिल्कुल। आई नो, आई एम सॉरी। या You नहीं नहीं, कोई बात नहीं, please, सॉरी please, नहीं, please. सभी लोग अच्छा बोल रहे हैं देखो ना। एक चीज कहिए, एक और कह दूं, अब अच्छी चीज कह देता हूं। हमारे सारे शास्त्र जब खत्म होते हैं ना ईश्वर को वर्णन करने के बाद, नेति नेति नेति, हाँ, ये भी नहीं, ये मैंने भी ये नहीं। कहा है, बट वो इससे भी ज्यादा है, हम्म, मैंने खत्म नहीं कर दी किताब। हम्म। नेति नेति नेति, दैट्स व्हाट द लाइन इज। गो अहेड हर्ष। थैंक यू, थैंक यू। मेरा ख्याल है कि ओरिजिनली राम विनोद जी का जो सवाल था वो ये था कि भगवान जो है क्या वो खुश हो जाता है, क्या वो ऐसे हो जाता है, इस तरह के जो डेफिनेशन दी जाती है तो वो क्यों है, और उसके साथ में राम विनोद जी एग्री नहीं करते, उसके हाँ, साथ अलाइन नहीं हो पाते हाँ, ये इस थिंकिंग का। हाँ। बिल्कुल ठीक बात है। राम विनोद जी साइकोलॉजिकली जो ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, वो एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है दूसरे के साथ, किसी भी दूसरे के साथ। संसार के अंदर ये माइंड का, मन का एक गुण है कि वो उस रिलेशनशिप को क्रिएट किए बिना बहुत बेचैन हो जाता है। अब क्या है रिलेशनशिप ये, मान लीजिए कि वो किसी चीज को किसी चीज को पसंद करता है तो उसकी रिलेशनशिप हो जाती है कि मैं इसे पसंद करता हूं। किसी चीज को वो नापसंद करता है, वो भी एक रिलेशनशिप है उसकी कि मैं इसको नापसंद करता हूं, एक रिलेशनशिप है उसकी। जब हम, जब वो अपने से बड़ी कोई चीज समझता है कि भाई मेरे से बड़ा कुछ है, चाहे वो नेचर हो और चाहे वो भगवान हो, तो वो एक रिलेशनशिप अगेन क्रिएट करता है। तो एक व्यक्ति एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है कि भगवान जो है मैं उसको प्रसन्न रखूं,
और उसको प्रसन्न रखने से वो मुझे, मेरे को जो मेरी इच्छाएं हैं वो पूरी करता रहेगा। तो उसकी रिलेशनशिप बन जाती है भगवान के साथ में कि मुझे भगवान को प्रसन्न रखना है। दूसरा आदमी रिलेशनशिप बनाता है कि अगर मैं भगवान के बताए हुए काम नहीं करूंगा तो मुझे दंड देगा। तो मेरी रिलेशनशिप जो है वो भय वाली हो जाती है, बट वो रिलेशनशिप है। तो इन सभी रिलेशनशिप्स के अंदर कहीं ना कहीं लिमिटेशन, रिलेशनशिप हमेशा लिमिटेशन के साथ में आ रहा है, क्योंकि रिलेशनशिप के दायरे के बाहर की चीज जो है वो उस रिलेशनशिप से एक्सप्लेन नहीं हो सकती। तो हर व्यक्ति अपनी अपनी रिलेशनशिप क्रिएट करता है, और कुछ आचार्य, कुछ टीचर, कुछ गुरु उस रिलेशनशिप को जो वो स्वयं मानते हैं उसी रिलेशनशिप को सबको बताते हैं। अब उसमें से अगर उन्होंने 10 लोगों को बताया तो हो सकता है कि उसमें से 8 लोग वो बोले कि ये रिलेशनशिप जो है मुझे सूट करती है, मैं इसके साथ अलाइन हो जाता हूँ। और 2 लोग ऐसे हों वो कहेंगे तो ये तो सूट नहीं करती, क्योंकि इसके साथ में मेरे क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। अगर जैसे सिंपल सी बात है जो शायद आप लोग इसको अलाइन करेंगे इसके साथ, क्यों कहता है कि भगवान जो है ये करने से खुश हो जाता है। अरे भाई, भगवान कोई इंसान की तरह है क्या कि ये करेंगे तो खुश हो जाएंगे, वो करेंगे तो नाराज हो जाएंगे? तो वो जो 8-10 में से 2 लोग हैं वो कहते हैं, ये सवाल में हमारे दिमाग में आता है कि भगवान तो इंसान नहीं हो सकते, भगवान तो वो इंसान से ज्यादा है। तो ये खुश ना खुश वाली बात जो है ये मुझे अलाइन नहीं है, क्योंकि उनकी रिलेशनशिप भगवान के साथ में ये है कि भगवान जो है वो, अब मैं वर्ड्स के उसमें मैं कुछ वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, बट भगवान दयावान है, भगवान सबके लिए सेम है, भगवान किसी को दंड नहीं देते, भगवान के लिए सभी उनके अपने बच्चे हैं। इस तरह की रिलेशनशिप बना लेता है वो, तो वो उसकी अपनी पर्सनल रिलेशनशिप है और भगवान उसी रूप में उसकी रिलेशनशिप को पूरा करते हैं। तो यस, संसार के अंदर क्योंकि हर मन, हर बुद्धि एक यूनिकनेस के साथ में आती है, तो हर व्यक्ति की रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप भगवान के साथ में किसी ना किसी लिमिटेशन के साथ बंधी हुई होती है। तो इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है ऐसे में कि भाई उसकी जो रिलेशनशिप है उसके मन अनुसार है, उसके बुद्धि अनुसार है, उसके संस्कार अनुसार है, या जो उसने सीखा है। अब बचपन में हो सकता है कि हमको ये बताया गया हो कि भाई भगवान का ये काम नहीं करोगे तो भगवान तुम्हें दंड देंगे, और हम मानते हो, बच्चे थे। पर जैसे जैसे हम बड़े हुए हमने इस बात को नकारना शुरू कर दिया, हमने कहा ये रिलेशनशिप मेरे काम की नहीं है, तो हमने रिलेशन चेंज कर दी। बट एनीवे, तो मन जो है वो डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर इस रिलेशनशिप को चेंज करता रहता है। तो इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि ये अंडरस्टैंड करना कि हर व्यक्ति की अपनी एक रिलेशनशिप रहेगी भगवान के साथ में, उसको वो डिफाइन करेगा अपने ही तरीके से। मगर मेरी क्या रिलेशनशिप है भगवान के साथ में, मैं उस रिलेशनशिप को अपने को पक्का रखूं, क्योंकि भगवान ने मुझे उसी रूप में मिलना है जिस रूप में मैंने उनको अपने सामने, अपनी रिलेशनशिप के सामने रखा हो। तो तो हमारा जो प्रश्न है बिल्कुल ठीक है, बट उस प्रश्न के आंसर में मैं सिर्फ यही कहूँगा, सृष्टि है, भांति भांति के फ्लावर्स हैं, उससे गार्डन बनाओ, उससे उससे ये यहाँ गार्डन से बनाओ, गार्डन बना, गार्डन। गार्डन। उससे एक गार्डन सुपर, बनाओ। सुपर। I mean, I got my answer to 99% level. ठीक है, तो आई थिंक दिस वाज द क्वेश्चन और आई थिंक दिस इज द वे आई वुड आंसर इट। यू जस्ट या बी। दीजिए इंडिविजुअल, अगर मैं उसी मंदिर में जिसमें बहुत सारे लोग
फ्लावर चढ़ा रहे हैं, कोई मिठाई लेके आ रहा है, अगर मैं वहां जाकर के हाथ जोड़ करके भगवान को मनन करता हूँ और उससे वो रिलेशन अगर मुझे चाहिए, तो उस रिलेशन से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मुझे ऐसा लग बिल्कुल रहा बिल्कुल 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 वही भगवान ने बनेगा। भी है। और गीता में हमारे बड़ी क्लियरली इस बारे में कहा है कि पुष्पम फलम तोयम, यानी कि पत्ती पत्ती भी चढ़ाओगे या पानी चढ़ाओगे, दिस इज गुड एनफ बिकॉज दे आर फ्रीली अवेलेबल इन नेचर। तो जो हमारे जो शास्त्र है वो इस सारी रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं डिफाइन करते हैं। या रिलेशनशिप I mean is a तो हर good हर angle of thinking. हर शास्त्र के अंदर, वेदों के अंदर हर तरह की रिलेशनशिप को डिफाइन किया गया है। और भगवत गीता में आके भगवान ने भी उस रिलेशनशिप को डिफाइन किया, बट इन ए टोटली डिफरेंट वे। तो तो ये जो 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 हमारे शास्त्रों की यही खूबी है कि हर व्यक्ति को अपने सब्जी मंडी में से जब वो सब्जी लेने जाता है तो अपने पसंद की सब्जी मिल जाती है। वो पूरी की पूरी सब्जी मंडी जो है वो हमारे शास्त्रों में है। आप अपने अपनी पसंद की सब्जी उसमें चुन के ले आओ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये दिस इज साइकोलॉजिकल फैक्ट ऑल्सो, एंड दिस इज शास्त्र ऑल्सो। शास्त्रों ने इसी चीज को कई तरीके से बताने की कोशिश की है। तो सिर्फ इम्पोर्टेंट क्या है कि मेरी पर्सनल रिलेशनशिप भगवान के साथ में क्या है, और मैं उस रिलेशनशिप पे अपने को सच्चाई के साथ में आगे बढ़ूं। बस तो ये सबके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट, करेक्ट, सबके कि रास्ते अलग मेरी हो। क्या रिलेशनशिप है, मैं उसके साथ में कितना ऑनेस्ट हूँ, उसके साथ में कितना मैं उस इंटेग्रिटी के साथ में उस रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकता तो गुड। भाई लोग मैं इजाजत ले रहा हूँ हाँ प्लीज। वही मैं कहने हाँ, वाला यस सर। मकरंद तुम्हारा या टाइम हो Okay, गया। go Anand ahead. bhai, हाँ before you go, just one information I want to give. Just 4 days back, my younger son is blessed with son. So today is ओ fourth day. कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मुबारक हो कल भाई। जो है उसकी छठी है। तो मैं उसके लिए थोड़ा दिमाग, कुछ सामान लाना है, कुछ करना है, लाइक दैट। So I mean this is also part of सांसारिक कोर्स हाँ ऑफ नहीं बिल्कुल प्रोग्रेस। बिल्कुल, नहीं बहुत बहुत अच्छा, जरूरी है रामेश्वर बहुत जी, अच्छा, या बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छी बात है। बेटा बहुत। ऑल बधाई राइट, हो। सी Okay, यू या see नेक्स्ट you. वीक। ठीक है ओके, मकरंद, सी यू। See बाय you. बाय। या Bye. सो एनीवे, सो दिस या नहीं, आई गॉट योर दिस थिंग, मतलब कि बेसिकली ये बार बार अपने को नो, आदमी ग्लानि महसूस करने लगता है, यार मैं तो लाया नहीं, मैंने तो ये किया नहीं। नॉट दैट, जो आप सही समझते हो वो तो करो, जो आपको लगता है वो रिलेशन तो बनाओ और उससे आगे बढ़ो। अब बिल्कुल मुझे लगता है कि दिस इज द राइट अप्रोच। जो भी रिलेशन आप बना सकते हो, हर एक का अपना अपना हो सकता है। नथिंग इज एब्सोल्युटली राइट और रॉन्ग। क्योंकि इवेंचुअली तो आपको इन सभी रिलेशनशिप से आगे जाना है। बियॉन्ड जाने का है, इवेंचुअली राइट। तो वो है, जगह तो वो है। इवेंचुअली तो जगह वो है कि जैसे देखिए, ये मेरा हाथ है, ये हाथ के आसपास सारी एक स्पेस है। मेरे मन में जो विचार है उस विचार के आसपास भी कोई स्पेस है, क्योंकि विचार तो लिमिटेड है ना, उसकी बाउंड्री है ना विचार। जैसे हाथ की बाउंड्री है, बाउंड्री के बाहर स्पेस है। इसी तरह जो विचार है उस विचार की एक लिमिटेशन है, बाउंड्री है। उस बाउंड्री के बाहर भी एक स्पेस है। इसी तरह से जो मैं अपने को समझता हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ, वो मैं के बाहर भी एक स्पेस है जिसके अंदर मैं एग्जिस्ट करता हूँ, और मैं की एक लिमिटेशन। ये जो स्पिरिचुअल स्पेस होती है, जो मैं के बाद होती है, जिसके अंदर वो मैं एग्जिस्ट करता है, उस स्पिरिचुअल स्पेस पे एंटर करना, इस मैं को इतना एक्सपैंड करना कि वो उसी स्पिरिचुअल स्पेस के साथ मिल जाए, ये हमारा ये आध्यात्मिक गोल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक समय तक रिलेशनशिप चलती है, उसके बाद में उससे भी हमें आगे जाना होता है।
तो ये आध्यात्मिक गोल है। और ये इसमें से कुछ भी ऐसी चीज नहीं मैं अपने आप बोल रहा हूँ, ये सारा हमारे शास्त्रों में ही लिखा हुआ है। क्या है? सिर्फ मैं उसको एग्जाम्पल डिफरेंट ले रहा हूँ, मॉडर्न टाइम के वर्ड बोल रहा हूँ बस। ये जैसे अब अशोक बोलता है मॉडर्न टाइम के वर्ड बोलता है, साइंटिफिक न्यूक्लियर वर्ड्स बोलते हैं, तो ये वर्ड्स तो वो डिफरेंट हो जाते हैं, बट जो कॉन्सेप्ट है, जो उसके पीछे का ज्ञान है, वो वही है, शास्त्रों से बाहर नहीं। गुड। तो अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट होना भी है, तो वी कैन स्टॉप दैट। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको रोक देता हूँ।